جب نظر سوئے پروانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئے ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایمان تازہ کیا صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب محمد عبداللہ مسلح بہت باقی بھی ٹھیک کر دیں ساتھ والے بھی نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرات گرامی مخصوص روزنامہ بدلتا زمانہ کی میڈیا پارٹنرشپ کے ساتھ انجمن اساتذہ پاکستان کا یہ تعلیمی کنونشن اسلامی ہائی اسکول دولت گیٹ کے حال میں انعقاد پذیر ہے اور میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں پروفیسر راجہ آفتاب بدوی صاحب کو صدر انجمن اساتذہ پاکستان آزاد کشمیر جموں و آزاد کشمیر اور مدینۃ الاولیاء ملتان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہ آپ آئے سج گیا گلشن میرے افکار کا آپ آئے سج گیا گلشن میرے افکار کا اور آپ کے صدقے بہاروں نے بسیرا کر دیا بھرپور تعلیم میں استقبال کیجیے گا جناب پروفیسر راجہ آفتاب بدوی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ہم انتہائی ممنون کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے جناب معراج صاحب کی طرح یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں حضرات گرامی تقاریر کا آغاز کرتے ہیں عنوان موضوع میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آج جو برننگ ایشو ہے اساتذہ اور پینشنرز کے مسائل اور ان کا حل اس پر گفتگو ہوگی اور سب سے پہلے ان کی خواہش کے مطابق کہ وہ شکریہ بھی ادا کریں اور کچھ گفتگو بھی کریں میری مراد جناب غلام یاسین قادری سابق مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان بھرپور تعلیم میں استقبال کریں میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز احباب گرامی جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو پنڈال میں تشریف فرما ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں جناب محترم سید محمد اکبر بخاری صاحب پرنسپل ہمارا جو میزبان اسکول ہے ان کا اور پھر آزاد کشمیر سے دوست تشریف لائے راجہ آفتاب بدوی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں شیخ معراج خالد صاحب ہیں جناب محترم پروفیسر ندیم اشوی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں عقیقہ کے اور اساتذہ موومنٹ جو چل رہی ہے اس کے سہیل اور اس کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی جناب محترم عبدالمجید خان نیازی جو کہ ہمارے نو منتخب صدر ہیں رات کافی مشاورت کے بعد طوالت کے بعد الحمدللہ وہ بطور صدر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں اور جناب محترم شاہد اقبال فریدی صاحب جو کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ہمارے سابقہ صدر بھی ہیں اور اس وقت چیئرمین شورا نو منتخب چیئرمین شورا کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محترم سلیم خان صاحب مردان سے اور مردان سے جو دوست تشریف لائے ان کا بھی میں بطور خاص شکر گزار ہوں 1 سال کا ٹینیور تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال لاہور میں کنونشن ہوا 24-25 دسمبر اور آج جو ہے 1 سال بعد 25-26 دسمبر تو آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ میں نے 1 سال کا عرصہ گزارا میرے ساتھ محترم محمد اختر سیال صاحب محترم محمد شریف زاہد صاحب بطور پنجاب کے صدر اور دوستوں نے مل جل کر کام کیا ہمارے درمیان اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو آج اس نئے منتخب باڈی سے حلف بھی لیں گے
बहावल नगर से, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। उनके साथ भी एक साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रही। और ख़ास तौर पर मैं ज़िला मुल्तान और ज़िला खानेवाल के मेरे जो अहबाब हैं, जैसे मोहम्मद आबिद साहब हैं और मोहतरम राजा कौसर खान सईदी साहब, मोहतरम नासिर महमूद शाह साहब जो कि नाज़िम कन्वेंशन हैं, और खानेवाल से चौधरी सैफुल्लाह गिल साहब मेरे बड़े प्यारीना साथी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इस्तकामत दी, जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और उनके साथ मोहतरम अजहर सदीक साहब तशरीफ़ लाए, बल्कि यूँ समझें कि तमाम इंतज़ाम वो मुकम्मल करके लाए। बल्कि मैं हंस रहा था बुखारी साहब कि हम जो है खालिस्तान देहात वाला 17 किलो दूध भी चाय के लिए दोस्तों के लिए साथ लेके आए। तो सब दोस्तों ने बड़ा साथ दिया। और मैं इस शेर के साथ, एक शेर मेरे लिए और एक शेर आप सब के लिए। जनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, गर्चे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। और एक शेर सर आपके लिए। आज की रात भी है भारी लेकर यार कतीम, आज की रात भी है भारी लेकर यार कतीम, तूने हमारा साथ दिया तू जिए हजारों साल। हमारे दरमियान मोहतरम शाहिद मसूद साहब मेरे इंतहाई सीनियर, वो भी मौजूद हैं। मैं उनका भी बतौर खास, इसके अलावा सियालकोट के साथी बैठे हुए हैं और दूर दराज से आए हुए साथी। कुछ दोस्तों को सच तरह जल्दी थी, उनका एक अचानक बहुत की हुई, तो बखर से आने वाले दोस्त वहाँ चले गए। तो तमाम आप का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान मेरे से, मेरी कैबिनेट के किसी फर्ज से, मोहतरम अख्तर सियाल साहब से कोई गलती साझा जो हो गई हो इस एक साल के दौरान, तो हम आपसे माजूद हैं। हज़रात गिरामी, जनाब गुलाम यासीन कादरी में भी माशाल्लाह अदब जो है वो अदब से परवान चढ़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता शायर भी होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगला कोई मजमुआ इंशाल्लाह उनका शाया होने वाला है। तो उन्होंने 2 शेर पढ़े और एक शेर में आप सब की तरफ से उनके लिए कि इनका ख्याल अपने सुखन से निकाल दूँ, इनका ख्याल अपने सुखन से निकाल दूँ, गोया के अपनी जान बदन से निकाल दूँ। गुलाम यासीन कादरी साहब की खिदमत के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और अब मैं बाबाए असातिज़ा, पंजाब टीचर्स यूनियन के हवाले से पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम उस्तादुल असातिज़ा जनाबे राना मोहम्मद असलम सागर हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ और गुजारिश करूँगा कि बतौर मुक़र्रिर आज इस सेमिनार में असातिज़ा और पेंशनर्स के मसाइल और उनके हल के हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू फरमाएंगे। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा नज़रिए पाकिस्तान फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब राना मोहम्मद असलम सागर साहब। मेरे मोहतरम मेहमानान और दोस्तों, हम पेशा दोस्तों, हम मुल्तान के लोग आज आपको आपने हमारे शहर को तशरीफ लाकर रौनक बख्शी और मेज़बानी की। असातिज़ा के मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो तकरीबन इस फील्ड में सन 1970 से हूँ और यकीनन आज तक वो मसाइल हैं जो हल ही नहीं हो पाते हैं। कितनी ज़बरदस्त जिद्दोजहद के बाद भी नहीं हल हो पाते। इसका ये मतलब है कि कोई न कोई ऐसी फर्म है जो पाकिस्तान के तालीमी मसाइल को हल होने में हारिज है। अब ये हम असातिज़ा पर मुनहसर है कि हम इत्तेहाद और पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान के नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करें।
बात सीधी सी है कि पाकिस्तान ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनकर इस दुनिया के यहूद और हनूद के लिए बहुत बड़ा कसूर किया। उन्हें मालूम है कि ये इस्लाम का कला है और उस्ताद के पास उस कले की कुंजी है। अगर उस नहज पे ये तैयारी हो गई तो फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान छा जाएंगे, और यही रुकावट यहाँ के निज़ाम को दुरुस्त नहीं होने देती। जो इक़्तिदार में आते हैं, मालूम होता है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के पिट्ठू हैं और वो इस्लाम को यहाँ पनपने नहीं देते, वरना उस्ताद को एहतजाज करना पड़ेगा। देखे ना, गदा से शाह तक दुनिया में सब शागिर्द हैं मेरे, पैगंबर इल्म कहूँ सब मुझे उस्ताद कहते हैं। और मेरी ये हालत है कि मैं मुतालबे कर रहा हूँ उन लोगों से जो इस काबिल ही नहीं है और मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये शुरू से सन 70 में हमने एक कोशिश की कि पाकिस्तान का एक ही निज़ाम तालीम हो और स्कूल भी एक ही कैटेगरी के, और वो 1/10/72 को उस कोशिश के बाद स्कूल नेशनलाइज हो गए। अब सब गवर्नमेंट के एक उस पर आ गए, लेकिन हमारा भी इस सिलसिले में कोताही है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम कितनी बड़ी कुव्वत हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने अपने मसलब के लिए मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट गए। उस्ताद तो एक ही है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया भर का एक है। अगर आप एक बन जाए तो आपके मसाइल नहीं रहेंगे। आज अमेरिका की शक्ल है, या हमने उस वक्त मुत्तहिदा महाज सादा पाकिस्तान बनाई थी इसी मुल्तान शहर में, तो उसने भी काम किया। आज सरकारी मुलाजमीन भी साथ हैं, लेकिन उस्ताद के तशद्दुद करना चाहिए, और ये सुपर रहेगा तो पाकिस्तान सुपर रहेगा, वरना नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सबसे बड़ी जो शख्सियत दुनिया भर की यहाँ पैदा हुई पाकिस्तान में, वो हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सही सिफ्त का है वो तयन किया मुसलमानान हिंद के लिए कि वो तोड़ दिए बुत जो थे, लेकिन आज जब देखते हैं तो उनके वो उभर रहे हैं शाखें, कोई सिंधी, कोई बिलोची, कोई पठान, कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई महाजन। ये क्या चक्कर है साहब? हम अपनी कुव्वतें पाकिस्तान के इस्तेमाल और उसको मजबूत करने की बजाय आपस की इन मामलात में जो है वो हम जो है पाकिस्तान का इस्तेसाल कर रहे हैं, हम उसकी तामीर नहीं कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ निज़ाम इस्लाम वाबस्ता है। हम असातिज़ा को भी अपने फ़राइज़ को पूरी तरह से अंजाम देना चाहिए, और जब तक मुत्तहिद होकर आप नहीं लेंगे ना मसाइल का हल के लिए कोशिश नहीं होंगे, कामयाबी का इम्कान नहीं है। थोड़ा सा टॉलरेट करें मुखालिफिन को भी। मैं पंजाब टीचर्स यूनियन का हूँ, लेकिन मैं असातिज़ा का बुनियादी मेंबर हूँ। सैयद मेहदी हसन शाह साहब की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, और हमने मिलकर काम किया है। हमने मिलकर काम किया है, बिला इसके कि भाई सारी ही आप अंजुमन देखेंगे, चाहे SCS को देखें चाहे किसी को देखें, गौर तो करें और फिर उन्हें लाएं एक फलों में। बस वक्त बोलने वाले ज़्यादा होंगे, मैं जनाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये राजा साहब हमारे इस पूरे मुल्तान की खित्ते की शान है, बड़े अदीब हैं और बड़े चैनल पे भी इनके आते रहते हैं, मज़ामीन भी आते रहते हैं। और ये कादरी साहब तो हमारे पुराने साथी हैं, हम सफ़र हैं, साथ चले। अल्लाह ताला आपकी बरकत
मतलब किसने अच्छी बातें करी हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन जाहिर बात है, होनी किसी चाहिए। के हाथ को लगना है। आ जाओ। हज़रात गिरामी, मैं गुजारिश करूँगा मैं ठीक कर लेता हूँ। कि बड़ी देर बहुत सारे दोस्त जो यहाँ इस वक्त खिताब करना चाहते हैं या जिन्हें मैंने दावत देनी है, मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा जो वक्त की तकसीम है उसे आज खुद देख लें कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है उसे आप तक पहुँचा दें, दरिया को कूदे में बंद कर दें, आप सबकी नुमाइंदगी हो जाएगी और यहाँ जो हमारा आज का बर्निंग इशू है उस पर भी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। वगरना सारे ही मुकर्रिरीन हैं, सारे ही असातिज़ा हैं और किसी एक शख्स को खड़ा कर दिया जाए, प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब को भी मेरा ख्याल है 12 घंटे काफ़ी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा इंतहाई अदब के साथ हाथ जोड़कर कि जिन दोस्तों को मैं दावत दूँ अल्लाह करम खुद जो है वो टाइम को ज़रा मैनेज कर लें। इंशाअल्लाह 12 बजे के करीब गजाली ज़मा राजी दौरा हज़रत साहबजादा मदर से कालवी दामद बरकातुहुल आली थी, इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होंगे। वो उनकी तबीयत खासी नासाज थी, लेकिन उनसे गुजारिश की कि सर अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का कन्वेंशन है और अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की बुनियाद गजाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर रखी गई, तो इस पर से आपका आना बनता है। तो वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे दरमियान होंगे। और ATI के जो मरकज़ी नायब सदर अव्वल हैं जनाब सैयद हसनैन नूरी साहब गुजरांवाला से मुल्तान पहुँच चुके हैं। गवार काजी साहब का फोन आया और इंशाल्लाह उन्हें लेकर अभी थोड़ी देर में आते हैं। हज़रत गिरामी, जनाब मोहम्मद शरीफ जाहिद पाबंद सलासल रहे, सूबाई सदर थे, सूबाई सदर हैं, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कुछ और पेश गोई जो है वो इंशाल्लाह आप लोग करेंगे कि इन्होंने कहाँ तक का सफ़र करना है। जुर्रत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और इस्तकामत और सब्र के साथ असातिज़ा के मसाइल, मुतालबात, पेंशनर्स के बारे में माशाल्लाह वहाँ जलसों में देखता रहा कि खूब इन्होंने अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की, असातिज़ा की, पेंशनर्स की भरपूर नुमाइंदगी की। और इन्हें इस शेर के साथ दावत देने जा रहा हूँ कि हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहर पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मौजूदा सदर पंजाब जनाब मोहम्मद शरीफ जाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अंजुमन असातिज़ाए पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मुहतरम, हम सारे उस काफ़िलाए इश्क़ व मस्ती के हम सफ़र हैं जिसका कोई बुनियादी मिशन नहीं। हम सबका मिशन एक ही है, वो है फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, लायक तहसीन है आप लोग एक मुक़द्दस काज के साथ खड़े हुए। अहबाब गिरामी, जैसा कि मेरे मोहतरम राजा कौसर सईदी साहब ने फरमाया, अहबाब ने गुज़िश्ता साल ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी। कोशिश की है कि ये जो मेरे बुजुर्गों की अमानत मेरे पास आई है, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान ख्वाब में नहीं वजूद में आती। इसके पीछे दहाइयों की कोशिशें हैं, जद्दोजहद है, लोगों की कुर्बानियाँ हैं। तो मैं उन कुर्बानियों का अमीन था। मैं अक्सर कहता हूँ कोई भी शख्स अंजुमन की ज़रूरी नहीं है, हम अंजुमन की ज़रूरत नहीं है, अंजुमन हमारी ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आज मुझे ये इज्जत, ये सादत हासिल है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो इसके लिए मैं अंजुमन का मरहून मिन्नत। इस मुकाम पर मुझे अंजुमन से वाबस्तगी ने पहुँचाया है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस एरिया में हैं, जिस स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में हैं, खुदारा अपने मिशन से जुनून की हद तक वाबस्तगी रखें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका अजर है और आखिरत में भी।
बाकी अपने हवाले से गुजारिश करूँगा, मुझसे जो भी अच्छाइयाँ सरजद हुई वो अल्लाह करीम और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता के बाद आप दोस्तों की रहनुमाई से मुमकिन हो पाए। इस एक साल में चूँकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा